हाय, मैं हूँ राज शमानी और यहाँ पर हम इंडिया के बेस्ट लीडर्स को लेके आते हैं ताकि आप उनसे सीख सकें कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजी ऑफ अ कस्टमर जो ब्रांड बनाना चाहते हो, तो क्या इंडिया वन को क्या खरीदना, डिस्टिंग्विशर, जैसे आपने बोला इंडिया टू की हम बात कर रहे थे, वो तो प्राइस है। आप प्राइस पे जीत गए, डिस्ट्रीब्यूशन पे जीत गए, मार्जिन ज़्यादा दे के जीत गए तो आप जीत जाओगे। इंडिया वन में कैसे जीतोगे? क्या डिफरेंशिएटर होना चाहिए? It has to appeal to your ego. Ego and vanity. मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन दिस थोड़ा, किसी ब्रांड का एग्जांपल देखिए। ईगो मतलब सुबह पहन के ऐसा लगना चाहिए मेरे से ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है। एंड सब लोग मेरे को आज 5 लोग तो पक्का पूछेंगे और मैं फ़ोटो पोस्ट करूँगा तो इतने लाइक्स तो आएंगे। ये ब्रांड कैसे प्रॉमिस कर सकती है? You start feeling by seeing the communication of the brand. I'll feel like this. So it talks to you in a particular way, that brand. Where you start believing in that and you start believing that this has that attributes and it will happen. So as a brand, तुम प्राइस प्रॉमिस से ज़्यादा इमोशनल प्रॉमिस करो। बहुत ज़्यादा। इमोशनल प्रॉमिस हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। Emotional and it touches and it appeals to your ego. की फील तो कैसे करा? कोई ब्रांड का एग्जांपल दोगे जो आपको लगता है कि किसी ब्रांड ने करा है? Every brand does that. Give me one or two examples. You do it by shortages. All the luxury brands do it. Today, if you go to any luxury store, they don't allow more than 8-10 customers in. वो लाइन लगा देंगे पीछे कि आप वेट करो। हाँ। तो they are hurting your ego just to get your ego and your vanity in here. और फिर तुम अंदर जाते हो, फिर There are brands which have been launched only for a day or 2 days. खत्म हो गया and then they will come next month. They do that a lot of time. Jordan specifically बना इसलिए था। So you create that shortages. तो imagine now if you are wearing a Jordan, आप you are looking at other people, इनके पास तो है ही नहीं। हाँ। इनको तो मिला ही नहीं, मेरे को ही अकेले को मिला है। I think you are appealing to that. That's a very strong ego boost. Very strong ego booster है। I think another big thing which has happened is जिसकी resale value ज़्यादा है। तो रीसेल वैल्यू कैसे? स्नीकर्स वो मार्केट पैरेलल मार्केट ऑपरेट होता है जिसमें वो लोग रोज प्राइस ढूंढते हैं। उनको लगता है मेरे पास ये चीज़ है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही। घड़ी में होता था पहले, वॉचेज में, अब जूतों पे आ गए, तो बैग्स पे आने लग जाएगा। बैग्स पे भी आजकल सेकंड हैंड मार्केट में बैग्स की कीमतें आ जाती है। हाँ, एनी हैंडबैग यू हैव, महंगे ब्रांड से तो हो रहा है, बर्किन, शनेल, सबके आ जाते हैं। तो उनको लगता है ये इसकी वैल्यू अभी इतनी तो है मेरे पास में। यस। तो ये मार्केट्स नए क्रिएट हो रहे हैं। What is the biggest change you've seen versus India then and India now? Big shifts, big shifts. What formula can't work now anymore? क्या सबसे मेजर क्या learning थी? I think the medium of communication has totally changed. That's a big shift. Today, how do you build a brand? Newspaper advertising कोई पढ़ता नहीं है. Dead. Television में it has become fragmented to an extent wherein to get a big property to build a brand is very expensive and difficult. So how do you now build? How do you communicate? How do you talk? So and the medium of communication has become one-to-one significantly, because when a dominant medium of communication changes, everything changes around it. I think the social media has changed the way we talk, with the way we communicate, with the way we express. So the rules of the engagement has totally changed. So now content has become important. How you talk to your customer has become very important. And I think we are still evolving. We are in a transition phase of doing what we have to do. तो मतलब अभी भी मासी प्रोडक्ट्स का इंडिया में मार्केट तो बनेगा। अब इंडिया का टाइम है। बिल्कुल बनेगा, बट इंडिया के पास मासी प्रोडक्ट बनाने के लिए अब एक पहले टेलीविजन होता था जिसमें ब्रांड बनते थे। टेलीविजन का रोल थोड़ा सा कम हुआ है इन दिनों में। वी नीड सम कम्युनिकेशन मीडियम जिससे मास ब्रांड बने। तो जो एक गैप है वो कि सब ब्रेक हो गया है। टेलीविजन का रोल जो था वो चेंज हो रहा है थोड़ा सा, अभी भी है। आई थिंक इट्स इन द डाइंग फेज, इट्स नॉट येट डाइड येट फुल्ली, बट आई सी 5 years डाउन द लाइन, 7 years डाउन द लाइन क्या होगा। वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। इंडिया वन को तो आप आज इंडिया वन को तो आप टेलीविजन के थ्रू कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहे। हाँ, वो तो खत्म। दैट्स अ बिग चैलेंज। और सब इंडिया वन को एक साथ एक चीज़ दिखाना थ्रू कंटेंट इज डिफिकल्ट, क्योंकि सब अलग अलग कंज्यूम करते हैं। वेरी डिफिकल्ट। सो दैट्स वेयर द रियल इशू इज राइट नाउ टू बिल्ड अ ब्रांड। Like I was trying to talk to a lot of, like, this is not based on some data large. I just talked to a lot of my friends, 25-30 लोगों से बात करके मैंने ये जिसकी बातें चल रही थी
कि 4 साल पहले तुम ब्रांड्स कौन सी यूज़ करते हो, चेंज, मतलब लोगों को चेंज चाहिए जो इतनी, जैसे मुझे लगता है पर्सनल केयर बहुत ही ज़्यादा लॉयल्टी वाली कैटेगरी है कि मैं जो फेस वॉश यूज़ कर रहा हूँ अगर मुझे सूट हो गया तो फिर मैं नया ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बहुत डिफिकल्टी होगी चेंज करके दूसरा ट्राई करूँ। अगर मेरे को मान लो एक्ने एज अ प्रॉब्लम है और किसी फेस वॉश ने हटा दिया तो मैं नहीं चेंज करूँ, बट लोग अभी वो भी कर रहे हैं। दे आर ओके टू जस्ट कीप स्विचिंग नई चीज़ें, हर थोड़े दिन में नया चीज़, हर थोड़े दिन में नया चीज़। But that itself is an opportunity to create a brand with some permanency. You can position the brand around that. Interesting. Yeah. I'm working on that. Yeah, that's an interesting intake. You can give that subtle cues to the customer. कि out of 10 things that you keep changing, this is one which is permanent. ये basic है तुम्हारा, इसके बाद ही तुम्हारा बाकी स्किन केयर रूटीन स्टार्ट होगा. Something like around that. Do you feel एक और चीज़ is changing and people are accepting more? पहले ब्रांड किसी एक चीज़ के लिए जानी जाती थी और अब एक ही ब्रांड 25 चीज़ें करती है. मतलब पहले एक स्कूल ऑफ थॉट था कि अगर मैं फॉग हूँ, मैं परफ्यूम ब्रांड हूँ तो परफ्यूम, मैं फेस वॉश नहीं बनाऊंगा, मैं बॉडी वॉश नहीं बनाऊंगा. मेजर बिजनेस उसी से कर रहे हो, बट यू क्रिएट दैट एडजेसेंसीज, बट धीरे धीरे you don't advertise the other products, but you don't lose out on a main proposition. अच्छा, that theory still remains. That remains. Yeah. क्योंकि आई थिंक द ओनली ब्रांड जिसने सारी कैटेगरीज बनाई और हर जगह थोड़ा अच्छा ही करता जाता है, एटलीस्ट फ्रॉम द लेंस ऑफ डेटा नहीं मेरे पास, बट फ्रॉम द लेंस ऑफ अ कंज्यूमर, इज निविया. कि निविया ने, बट निविया इज नोन फॉर अ स्किन क्रीम. हाँ स्किन, बट उसके बाद फिर एडजेसेंसीज बन जाती है. जैसे फॉर मी आई हैव नेवर यूज्ड निविया फॉर एग्जाम्पल, जो उसकी सॉफ्ट वाली वो क्रीम आती है, आई ऑलवेज यूज एज अ बॉडी वॉश एंड ऑलवेज यूज एज अ डिओड्रेंट. तो और अब फेस वॉशेस भी आने लग गए. सो निविया एज अ कैटेगरी उन्होंने बहुत चीज़ें निकाल दी और स्टिल दे नोन फॉर समथिंग कि स्किन फ्रेंडली है. सो डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल नाउ? I think it's possible, but your core proposition has to be still the same. Within that core proposition, you can build a brand, other products around it. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. ऐसी और बेहतरीन इंसाइटफुल नॉलेजेबल क्लिप्स के लिए राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो.